बच्चों, गिव मी 10 मिनट्स, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू अ टाइम टेबल जो आपके स्कोर को 0, 10, 50, 100, 200 से 600 तक लेके जाएगा इन द लास्ट 50 डेज। आई जस्ट वॉन्ट योर फुल अटेंशन एंड ओनली 10 मिनट्स। बच्चों, अगर जिंदगी में हम अपना डाउट हटा दे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ हम जिंदगी में क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। प्लीज स्टॉप थिंकिंग दैट यू कैन नॉट डू इट। प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि फिजिक्स केमिस्ट्री अभी भी मुश्किल है, आपसे नहीं होगा। मैं आपको टाइम टेबल देती हूँ which is based on 15 years of my teaching and I promise you it is really going to help you. Just follow whatever I'm going to tell you. So let us move forward. प्लीज सबसे पहले मेक श्योर आप हमारे कम्युनिटी पेज के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। मैं पिछले 10 इयर्स के एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट 60 डेज में करवा दूंगी। आई होप आप टेलीग्राम पे क्विज दे रहे हैं और डेली टारगेट्स व्हिच आई एम गिविंग यू, यू फॉलो देम. It's really going to help you again because I have made scientifically proven targets. Sometimes later becomes never. It is now that we can do it and I want you to give your 500%. सबसे पहली चीज which you should stop doing everything else and if you should just do one thing, that is start giving mock test. भले ही those mock tests you can give at Vedantu platform, you can give them on the NTA app. आप कुछ नहीं करना चाहते, आप PCB के previous year mock test लीजिए, अपने खुद के घर पे बैठिए और mock test देना शुरू कीजिए. mock test से होंगे 3 massive benefits, let me tell you. Mock test will help you do the full syllabus like nothing else, guys. जो चीजें आपकी बैकलॉग की वजह से भूल चुकी हैं, जो चीजें आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, जिन चीजों में आपको कंफ्यूजन है, मॉक टेस्ट इज दैट डेली टेस्ट व्हिच इज हैपनिंग. दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, व्हाटएवर प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चों प्लीज गिव मॉक टेस्ट. इट इज नॉट अबाउट मुझे कितना आता है, इट इज नॉट अबाउट मेरा कितना सिलेबस हुआ है. इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेली revision. It is a mock test. If you can give a 3-hour mock test every day, I can promise you your score will jump from 200 to 600. This is Vani ma'am's guarantee, who's been a teacher for 15 years. If you cannot give a mock test daily, please listen to me. Give a mock test every alternate day, every second day, every third day, but give at least 2 to 3 mock tests every week. The third most important thing the mock test will do for you is an active recall. और जितनी बार आप active recall करोगे, you would have read that day before yesterday, you would have read that day before yesterday. आप active recall करोगे, the neuronal connections in your brain are going to get smarter, are going to get stronger, and the more neuronal connections get strong, the better you will be able to remember them in the exam. आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके weak topics कौन से हैं. And you will be able to focus on solving more questions from those specific topics जिन पे आप mock test में score नहीं कर पा रहे हो. So if there is one thing which can instantly boost your score, it is mock test. Please listen to me. Give daily mock test. Bio is one subject which is based on reading. अगर आपने अभी भी बायो को 10 times NCERT से पढ़ लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Instead of solving 2 extra books, मैं फिर भी बताऊंगी आपको, read your NCERT. read your NCERT. अगर आप वानी मैम की बुक सॉल्व करते हो, बहुत अच्छी बात है. आपके पास अपनी कोचिंग की कोई और बुक है, बहुत अच्छी बात है. I really want you to read your NCERTs till the last day, क्योंकि तब तक भी आपको कुछ नया मिल जाएगा. If you want to score high, instead of solving किसी कोचिंग का मटेरियल, instead of solving something else, I really want, मैं चाहती हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं फोर्स कर रही हूं, प्लीज अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो. एनसीईआरटी को शॉर्ट क्रिस्प करके जिन चीजों को भूल रहे हो एनसीईआरटी में, इफ यू कुड मेक दीज काइंड ऑफ येलो पेजेस, इट इज बेटर. शॉर्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी के साइड में कर लीजिए. जो चीजें भूल रहे हो उनको अलग हाईलाइटर से लिख लीजिए. आई लीव दैट ऑन टू यू. आई डोंट वांट टू गेट इनटू माइक्रो मैनेजिंग, ये करो, बट एनसीईआरटी पढ़ो. फिजिक्स को रीड नहीं करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्टडी करके सॉल्व करना है. फिजिक्स मैं बता रही हूं बेटा, अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं, आप 0 to हीरो फिजिक्स में होना चाहते हो, आप 3 times एनसीईआरटी को रीड कर लो, सिर्फ रीड कर लो
और 3 टाइम 10 ईयर के PYQ सॉल्व कर लो, आप फिजिक्स में 0 to हीरो हो जाओगे। सबसे पहले 2 या 3 बार मैंने बोला कि एटलीस्ट 2 बार तो करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ लो और उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस भी किसी और किताब से नहीं करने, PYQs को सॉल्व करो। बायो में आई एम मोर फोकस्ड ऑन रीडिंग, यार क्वेश्चंस हो जाएंगे, एनसीईआरटी को बार बार रीड करो। फिजिक्स में 2 या 3 बार एनसीईआरटी को करके सारे 10 साल के PYQs को पूरा अच्छी तरह सॉल्व कर लो कि आपको एकदम नेचुरली याद हो जाए चीजें। केमिस्ट्री इज यूजुअली easier than physics, more difficult than bio. फिजिकल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्विंग कर ली। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री की सॉल्विंग आप सिर्फ PYQs पे कीजिए। जो आपके रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स हैं इनको आप एनसीईआरटी से आप एक पेपर में सारे कॉपी कर लो और रोज उनको सॉल्व करो, रोज डेली आप उनको सॉल्व करो। और रही बात आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक बेटा सिर्फ एनसीईआरटी से आती है, आप नोट्स बना लो, आप माइंड मैप्स बना लो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 10 साल के PYQs को सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के 10-15 पेज के नोट्स बना लीजिए, डेली सॉल्व कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस एक तरफ लिखिए, प्रोडक्ट साइड को खाली कीजिए और रोज सॉल्व करो। 20-30 डेज के अंदर विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आपकी टिप्स पे चीजें होंगी, यू विल रिमेंबर देम। आपका स्कोर केमिस्ट्री में 160 से नीचे नहीं जाएगा। लेट मी टॉक अबाउट सम ट्रेंड्स जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। बेटा सबसे पहले उठाओ ये दोनों यूनिट्स 11th की, राइट? ये दोनों 11th की आपका फेज 1 होना चाहिए, सबसे पहले इनको उठाओ। दूसरे नंबर पे उठाओ 12th की ये दोनों यूनिट्स, ये दोनों उठाओ। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी, सेल साइकिल, ऑब्वियसली एनिमल फिजियोलॉजी भी है। उसको मैं क्यों बैक पे रख रही हूं? बिकॉज एनिमल फिजियोलॉजी आई नो इज योर फेवरेट, आपने बहुत बार किया होगा। सो सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी, सेल एंड सेल साइकिल, ऑब्वियसली डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर से भी 15 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 और 5, बट आज चाहती हूँ जेनेटिक्स और इकोलॉजी करिए। उसके बाद नंबर 3 पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी। इनको आप कर सकते हो अप्रैल एंड में, अभी इनको करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल एंड में आप इनको उठाना। तो 1 2 3 समझ में आ गया आपको मैंने कैसे पढ़ने को बोला है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्योंकि आप लोगों की इजी है तो ये मार्च में खत्म करना है आपने 1 2 3, नेक्स्ट 12-15 डेज यू हैव टू फिनिश अप 1 2 3। फिर आप उठाइए ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स, आप देखिए 18 क्वेश्चंस हैं, राइट? एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये उठाइए, ये हो गया आपका नंबर 4, नंबर 5 एंड ऑब्वियसली दिस इज 6, दिस इज नंबर 7। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स आपने अप्रैल में शुरू करने हैं। उसके बाद आप आ जाइए एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल अगेन। प्लीज फॉलो दिस टाइम टेबल। अगर मैं आपसे केमिस्ट्री के ट्रेंड्स की बात करती हूं तो सबसे पहले आप लोगों ने केमिस्ट्री पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है बहुत अच्छे से, SPDF करना है और ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शन करने हैं और इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी एनसीईआरटी से करनी है। अगर आप ये ऑर्डर भी फॉलो करोगे इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। बट बच्चों कभी भी रैंडम पढ़ाई नहीं करनी, सबसे पहले वो टॉपिक्स करिए जिनसे मैक्सिमम वेटेज आती है, ताकि अपना जैसे दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड क्लियरेंस टेक्निक, आपके मैक्सिमम टॉपिक्स वो कवर होने चाहिए जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, राइट? देन मूव टू SPDF मॉलिक्यूल्स, ही मैक्सिमम क्वेश्चंस, देन मूव टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, then move to alcohol, phenol, ether, and then do the rest of the topics, do solutions, do electrochemistry. But सबसे पहले please make a list of all the reactions of organic chemistry. Then you move down, आगे बढ़िए, and then you make at least 12-13 page notes of inorganic chemistry. And then physical की theory एक बार NCERT से पढ़ ली, उसके बाद only solve previous year questions.
If I have to talk about physics, सबसे पहले oscillations, magnetic effect, laws of motions, kinematics, heat and thermodynamics, electrostatics. This you finish off in the month of March, right? April, beginning 1 to 10th, 12th April, do work energy power, do optics, motion of system of particle and rigid body, electromagnetic induction, current, electricity, atoms. So this you will do from, let us say, 15th to 30th March. This you will do from 1 to 10th April, and this you will do towards end of April. पूरा revision होने के बाद alternating current, behavior, electromagnetic, gravitation, physical world and measurements and properties of bulk matter वो end में करना है. राइट एवरीबॉडी, जैसे आपको पता है कि क्लास 11th में अगर आपको रिवाइज करने का, बच्चों की क्लास 11 बिल्कुल ब्लैंक होगी. सबसे पहले उठाओ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशंस, ऑसिलेशंस उठाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ग्रेविटेशन पहले कीजिए, वर्क एनर्जी पावर करिए. आपको पता है इतना सिंपल टॉपिक है, वन ऑफ द बिगिनिंग टॉपिक्स वर्क यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, 3 क्वेश्चन आते हैं. सो ऑलवेज गो बाय वेटेज. मार्च में एटलीस्ट टिल 10th April मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू गिव मॉक टेस्ट. करंट इलेक्ट्रिसिटी करिए, ऑल्टरनेटिंग करंट करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल कैपेसिटेंस सबसे पहले उठाइए, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर्स. फिर वो जो 111122 वाले हैं उन पे बाद में आइए. भले ही पहले 12 कीजिए, पर 12 के भी हाई वेटेज टॉपिक कीजिए. अगेन एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़िए एनसीईआरटी से, करिए 10 years के एमसीक्यू, देन मूव टू द लो वेटेज टॉपिक्स. I am not saying do your 100% syllabus, do your 85% syllabus, do your 80% syllabus, but do that 80% syllabus very, very well, guys. It is really going to help you, right? सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, फिर आइए एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स में अवॉइड मत कीजिए. 10 years के एमसीक्यूज करिए. इवन इफ यू आर नॉट गुड विथ थ्योरी, डू 10 year एमसीक्यू, सेम चीजें आएंगी. Solve mock test I talked about in the beginning. Mock test में जो गलती हो रही है, make a very small error copy. Weekends पे और daily last 2 hours revise कीजिए, and only read your NCERT. Only solve your previous year questions. Do this daily for next 50 days. Rank आपके हाथ आ जाएगी. Our greatest weakness is we think हमसे नहीं हो पाएगा, हम give up कर देते हैं. Guys, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूं. अगले 50 दिन तक हम करके दिखाएंगे. I will also make a detailed physics, chemistry, top topics videos for you. But I am with you. कल मैं cheat sheets बना रही हूं, 1 unit evolution and genetics जैसे 10 minutes में सब कुछ करवा दूंगी. I am making so much content for you, and it is only for you. So take care, बच्चों. Lots of love. Don't forget to like, share and subscribe. टेस्ट देने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, YT Biotonic कोड लगाइए. Lots of love. God bless you, बच्चों. Bye.